इम्पोर्टेंट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग क्लास 9 में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। फिर भी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, then algebraic expression is called polynomial. For example, a square plus 5. Here a is variable and 5 is constant. 2x square minus 9x plus 1 by 7. 1 by 7. X is variable, 2 is constant. X is variable. 5 is also a polynomial. This is called constant polynomial. 2x is also a polynomial. Degree of polynomial, highest power of the variable is called degree of polynomial. For example, a square plus 5. Here a, 2 is the degree. 2x square minus 9x plus 1 by 7. X to the power 2. Here power of x is 1. So degree of this polynomial is 2. 5 is also a polynomial. This is called constant polynomial. We can return 5 equal to 5x to the power 0 because x to the power 0 equal to 1. Hence degree of 5 is constant polynomial of the degree of constant polynomial is 0. 2x, x is to the power 1, so degree of 2x is 1. Okay, a degree of polynomial. So highest power of the variable is called degree of polynomial. Polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. 2x is linear polynomial. For example, 2x plus 5 is also a linear polynomial. Polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial. Similarly, for example, x square plus 7x plus 10 is a quadratic polynomial because degree is 2. A degree is 3 cubic polynomial. अब देखिए, find 0 of the quadratic polynomial. Find 0. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हम लोग 0 निकालेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट. 0 माने x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें पुट करने पे ये पूरा का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. वो x का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर इस इक्वेशन में उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, वो कहलाता है 0 और रूट्स. 0 और रूट्स. अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हम लोग 0 निकालते हैं. तो 0 निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का फैक्टराइज करेंगे. आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. ये देखिए 5 2 7 5 2 जा 10. 7x can be written 5x plus 2x plus 10. x common, x plus 5 plus 2 common, x plus 5 equal to 0. x plus 5, x plus 5. x plus 5 common, here is x, here is 2. x plus 2. So x plus 5, x plus 2 equal to 0. When product of two number is 0, then 1 is 0. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा या तो कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा. When x plus 5 equal to 0, तो x equal to minus 5, x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2. Hence x equal to minus 5 and minus 2 are the 0 or roots 0 0 और रूट्स कहें या 0 कहें, रूट्स कहलाता है. अब 0 आ कोफिशिएंट, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. कोफिशिएंट ऑफ x इज 7. अब सम ऑफ 0 हम निकाल चुके हैं -2 और -5.
तो सम ऑफ जीरो -2 + 5 -7। अब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये हम अपने मन से दिए, ये होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 7 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 -7/1 -7। कहने का मतलब जो सम ऑफ जीरो जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो जो होगा, सो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को -b/a भी लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b and c is called constant term। Here product of 0 -2 0 -5 and -2 प्रोडक्ट ऑफ 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 10, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 10 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 10/1 = 10। तो कांस्टेंट टर्म c कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, तो c/a। एक बात और, डिग्री ऑफ linear, the graph of linear equation, the graph of linear equation, the graph of linear equation is a straight line, is a straight line। graph of linear equation अगर y = 2x + 5, या 2x + 5 is a linear equation, तो graph of linear equation is a straight line। A graph of quadratic equation is parabola। This is called parabola। This is called parabola। ये और ये parabola ax² + bx + c quadratic equation when a is greater than 0, a is greater than 0, तो दिस ओपन अपर साइड, ऊपर के तरफ खुला रहेगा। a is less than 0, तो नीचे की ओर पाराबोला खुला रहेगा। ओके, ठीक, ओके। बीच में ना बहुत कुछ एग्जाम बताए। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो नंबर ऑफ 0 ग्राफ दे देगा और उस पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, कहेगा नंबर ऑफ 0। तो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है ये लाइन, एक जगह पे, तो ये 1 0। इसमें एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ 0 इसमें 0 होगा। नंबर ऑफ 0 की संख्या नहीं, एक भी नहीं 0 होगा। इसमें एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ 0 2 होगा। अब देखा जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा 2 0 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारा बुक में दिया हुआ है आपके। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का 2 का फर्स्ट कहता फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 दिया हुआ है। सम ऑफ 0 = 1/4, a product of 0 = -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -1/4x
प्लस माइनस, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो के जगह क्या दिया हुआ है, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। तो -1 ये दिया हुआ है। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस प्लस माइनस -1 एलसीएम 4 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 4 को डिनोमिनेटर जो है इसको हटा देना, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जो निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या किसी भी लीनियर इक्वेशन का जीरो, तो इक्वल टू जीरो करते हैं। जैसे 2x प्लस 5 का जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। तो ये हो गया। तो चूंकि जीरो तो इक्वल टू अगर जब जीरो करेंगे, दिस इक्वल टू अगर जीरो करेंगे तो 4 राइट हैंड साइड जाएगा, तो 0 × 4 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद था। ये देखिए दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। ये देखिए सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और सम ऑफ जीरो हम जानते हैं -b/a होता है। तो -b/a 1/4 और b/a माइनस है, माइनस को इधर ले गए तो -1/4 b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a -1/1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ a है, a की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ a है, a की जगह क्या है 1 है। तो दोनों जगह a का वैल्यू सेम करना है। a 4 है तो a यहाँ 1 है, तो c/a को इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 × 4 -4 4 1 जा 4, तो c/a इक्वल टू -4/4। अब a यहाँ भी 4 हो गया और a यहाँ भी 4 हो गया, तो a 4 दोनों में हो गया, तो a इक्वल टू 4। अब b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4, c इक्वल टू -4। अब b/a इक्वल टू -1/4 और c/a -4/4। a की जगह यहाँ भी 4 है, a की जगह यहाँ भी 4 है, तो a इक्वल टू 4। b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4, c इक्वल टू -4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a के जगह 4x स्क्वायर, a के जगह 4 वैल्यू पुट किए, प्लस b के जगह -x प्लस b के जगह -1 इंटू x प्लस c इक्वल टू -4 प्लस -4। तो 4x स्क्वायर प्लस -1x 1 नहीं लिखेंगे, प्लस -4 4x। ऐसे भी यही आया और ऐसे भी यही आया। ये हो गया दूसरा तरीका। आप देखा जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री इसका 3 है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इफ अल्फा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, नंबर ऑफ जीरो 1, क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ जीरो अभी निकाले हैं 2। अगर क्यूबिक रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो होगा 3। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। यहाँ c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय a, कोफिशिएंट ऑफ
coefficient of x square अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई माइनस डी मान माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप देखिए ऑप्शनल का क्वेश्चन है। If 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरो है, 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर जीरो। यहाँ डिग्री क्या है 4 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा सो 4 होगा। यहाँ 2 जीरो दिया हुआ है, ये देखिए एक x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इसका जीरो है, और दूसरा जीरो है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x इक्वल टू, तो इसको x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर factors of given polynomial। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3, इसको a मान लेते हैं, a ये हो गया आपका b, ये हो, तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, जस्ट ए मिनट, इट मीन्स x square minus 4x plus 1 is a factor of given polynomial। ये फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा तो इससे इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। अब डिवाइड करेंगे, और तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 जो होगा सो गिवन पॉलिनोमियल का ये क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड देंगे। ठीक, पावर हमेशा रहना चाहिए, यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 पे ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स टू द पावर 4 आएगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से, एक्स स्क्वायर। अब साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, माइनस ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, अब माइनस x स्क्वायर सब। अब इस साइन पे, नीचे के साइन पे ध्यान देंगे, माइनस 27x स्क्वायर। अब ये दोनों जो बचा 138x माइनस 35, इसको उतार देंगे। अब सिर्फ माइनस 2x क्यू पे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 2x क्यू आएगा, माइनस 2x है तो माइनस 2x क्यू, अब 4x इंटू 2x, 4x इंटू 2x, 4 2 जा 8, x इंटू x, एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 4x का साइन है माइनस,
2x का साइन क्या, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 1 को माइनस 2x, 1 इंटू माइनस 2x, माइनस 2x, अब फिर साइन चेंज, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 27x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, 138x प्लस 2x 140x माइनस 35, अब माइनस 35x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस 35x स्क्वायर होगा, माइनस 35 से, माइनस 35x स्क्वायर, आप माइनस 35 इंटू माइनस 4x 140x माइनस इंटू माइनस प्लस 140x माइनस 35 इंटू 1 माइनस 35, अब साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 30 कैंसिल, 148x माइनस 100 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब अदर 2 जीरो निकालना है इसका, तो दिस इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, चूंकि डिविडेंड इक्वल टू, ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, जानते हैं, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है ही नहीं है तो 0 है, तो 0 लिखे भाई, नहीं लिखे, चलिए इक्वल टू 0। अब दिस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, व्हेन जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जब व्हेन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, माइनस 7 और प्लस 5 माइनस 2 और माइनस 7 इंटू प्लस 5 माइनस 35, माइनस 2x को माइनस 7x प्लस 5x, ये दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 x माइनस 7 कॉमन, x प्लस 5 x प्लस 5, when x minus 7 equal to 0, तो x equal to 7, when x plus 5 equal to 0, x equal to minus 5, तो other 0 equal to 7 and minus 5। तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल खत्म हो गया। आप लोग कुछ बचा हुआ जो कुछ क्वेश्चन है बताइएगा, जो कहीं प्रॉब्लम होगा बताइएगा, ठीक, ओके।